Thank you all for being here. I'm Meha Dikshit, and recently my book called Peace of War Narratives of Resilience and Hope was released. And this book is actually about my over a decade of travels to different conflict zones across the world, which include Afghanistan Pakistan border, Sierra Leone in Africa, and also Kashmir. Coming here for over a decade now, traveling to various parts of the valley and also Jammu, also LOC, IB, different villages there, also Maoist areas, and Lebanon Syria border, and it also includes interviews with the Rohingya refugees along the Bangladesh and Myanmar border. So the crux of the book is essentially looking at conflict or looking at war through the eyes of people. So it's not really about the historical or the legal perspective or sociological perspective of war. It's about how ordinary humans who live in these conflict zones view conflict or view war, how they're able to survive and even build resilience. So although I do talk about despair, I do talk about violence and suffering, what impact or repercussions it has or footprints it leaves on the society as well as the individuals, but essentially my focus is how, despite the adverse or extreme circumstances, individuals and people in these conflict zones are still able to find hope and are they still able to build resilience. So this is the crux of the book. Yeah. Meha, we want to know कि आप जम्मू कश्मीर में कहाँ गए और किन लोगों से मुलाकात हुई? So मैंने जैसे बोला कि मैं मतलब 10 साल से आ रही हूँ यहाँ पर, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो मैं कम से कम 15 से 16 डिस्ट्रिक्ट्स में गई हूँ. कश्मीर वैली में मैं 9 डिस्ट्रिक्ट्स में गई हूँ, और LOC IB पे भी मैंने, एंड दिस इज़ एसेंशली ड्यूरिंग 2015 जब मैंने वहाँ पर फील्ड वर्क किया था. Around 7 villages along the LOC and IB, Poonch, Aknoor, Araspura, Rajouri, all these areas which I was visiting. सो बेसिकली जम्मू कश्मीर में ये मैंने जैसे बताया 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वैली में, और 15-16 ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर रीजन को मिला के है. ऑल्सो यहाँ पर ऑर्डिनरी लोग से तो मैंने काफ़ी आई हैव स्पोकन टू देम, आई हैव टॉक टू देम, इंटरेक्टेड विद देम फॉर ओवर अ डेकेड, बट also with it could be lawyers, it could be social activists, it could be politicians or people from different walks of life here in Jammu and Kashmir. Any kind of support you receive from the administration? Any kind of support from the administration in Jammu and Kashmir? You see, this book is essentially an independent work, okay? So it doesn't have that kind of support from anywhere, right? It's published by Sage and it's absolutely independent. बट सपोर्ट में क्या होगा दैट इफ़ आई एम टॉकिंग टू एनी वन, और अगर मैं ऑफिशियल से बात कर रही हूँ, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट कवर कर रही हूँ और इफ़ आई एम राइटिंग अबाउट अ सर्टन कॉन्फ्लिक्ट जोन, एंड स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करें, तो इम्पॉर्टेंट है कि मैं इंडिविजुअल से तो बात करूँगी ही, लोकल से, ऑर्डिनरी पीपल से, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट आई टॉक टू द सिक्योरिटी फोर्सेज, आई टॉक टू द पॉलिटिशियंस और आई टॉक टू द ऑफिशियल्स to see कि वो कैसे देखते हैं conflict. So it also includes that. इस बुक को कंप्लीट करने में कितना वक्त आपको लगा? फील्ड वर्क तो जैसे मैंने बताया over a decade, but writing I think I would say 2-3 years. स्पेसिफिक चीज जिस पे आपने ज़्यादा फोकस किया इस बुक में? स्पेसिफिक वही है जैसे मैंने बताया, मैंने रेजिलियंस, कोपिंग एंड होप, आर्ट्स पे, फाइन आर्ट्स पे बहुत फोकस किया है, म्यूज़िक पे फोकस किया है, पोइट्री, एंड सो इट्स नॉट रियली अ पॉलिटिकल बुक, आई वुड से. इट फोकसेस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट लाइक आई सेड. तो इसमें लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या कोपिंग मैकेनिज्म्स दे यूज़, and the coping mechanisms generally people would use could be
creative coping mechanisms like poetry, art, music. तो उस पे मेरा काफ़ी फोकस है. Ma'am, what is the main reason of releasing this book in Kashmir? And what is your message? What do you want to convey? Okay, so the main reason is that, a lot of people, like my friends, had been telling me that why don't you, also have an event here. So ये book तो actually last year publish हुई थी because like all of us know COVID के वजह से event नहीं हो पाया. I was supposed to do it at Habitat, but we couldn't do it because of the pandemic. And क्योंकि मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ and it really involves because अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा that I've spoken to thousands of people in the valley. People from, and different, not just the majority, of course, Kashmiri Muslims, and different minorities. It includes Kashmiri Pandits, it includes those who had left, those who didn't leave. So, Haba Kadal में मैंने काफ़ी interviews किए. फिर वो त्राल एरिया जो है, ये पुलवामा साउथ कश्मीर में 6 से मैंने बात करी, इंटरव्यूज़ किए. तो ये डिफरेंट पंजाबी कम्युनिटी जो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर 40-50 years, तो उनसे बात करी. सो पीपल ऑल्सो टोल्ड मी दैट व्हाई डोंट यू हैव एन इवेंट हियर. सो एंड आई थॉट इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पर इतना टाइम स्पेंड किया है एंड अ लार्ज चंक ऑफ इट ऑल्सो इज़ द रिजल्ट ऑफ माई ट्रैवल्स टू द वैली एंड डिफरेंट रीजन्स इन जम्मू एंड कश्मीर. इसलिए मेरा जब आप इंटरव्यूज कर रहे थे लोगों से तो कितना लगा कि कितने ओपन है लोग, कितने खुलकर बात कर रहे हैं? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि आई वुड से कि मेरा बिकॉज आई डोंट रियली, मेरा मोस्टली जर्नलिस्टिक अप्रोच नहीं रहता है, विच इज़ दैट वेरी ऑफन ऑफ कोर्स देयर आर रीजंस फॉर जर्नलिस्ट बिकॉज टाइम शॉर्ट होता है, आपको स्टोरी निकालना होता है. माई अप्रोच इज़ बीन मोर एंथ्रोपोलॉजिकल एज मच एज इट कुड बी. अगर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, सो आई very often I wouldn't really just go and interview people. I would meet, थोड़ा ice breaking होगा, interaction होगा. Many people I have met like over a period of time, so people have opened up. But of course अगर मैं किसी से पहली बार मिल रही हूँ तो एक उनमें एक apprehension होता है कि कहीं एजेंसी से तो नहीं है या कहाँ से है, But when I say I'm from JNU and I work with Amnesty, I've also worked with Save the Children, so they open up, and I've been researching in these conflict zones. But क्योंकि, as I mentioned, कि मैं काफ़ी सालों से यहाँ आ रही हूँ और कई बार generally मैं बात करती हूँ और कई बार मैं I've also used because conflict zones में sensitive उसमें तो आपको snowball sampling method use करना पड़ता है, right? You know someone and through that you meet people, so they're ready to open up. So in fact, if I can just share one incident with you, is that during the abrogation time, मैं कुछ श्लोक से मिली थी गोजवारा साइड से. So this particular person from that particular family, he opened up. And मैंने बोला कि मुझे कुछ इंटरव्यूज़ करने हैं, कुछ बात करनी है लोगों से, what they think of, and particularly downtown area में, जहाँ मैंने later बहुत रिसर्च किया है. तो फिर उन्होंने मेरी मुलाकात कराई. सो नेक्स्ट डे आई मेट दिस पर्टिकुलर फैमिली एंड बात हुई. सो इनिशियली ही एक्सपेक्टेड कि 15 minutes होगी, 20 minutes. He opened up and it went on for an hour. We had a long conversation. It was a great interaction. So later this person from Gojwara who had arranged for that particular interview says कि वो मुझसे पहले बोल रहे थे कि इनको सच बताऊँ या मिक्स कर दूँ. So that kind of apprehension, and this is not just one incident, क्योंकि मैं साउथ कश्मीर में मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, so I get to hear these things. मैं किसी फ्रेंड के साथ हूँ, वो कश्मीरी में बोलेंगे कि सच बताएं या फिर सच नहीं बताएं इनको, and I pick up little, I mean I'm not of course fluent in Kashmiri, but मैं थोड़ा बहुत pick up कर लेती हूँ. So I'm like, okay, this person is saying कि भैया जो आपकी बुक में जो अकाउंट्स हैं और द एनोनिमस की नाम भी है, some are comfortable कि उनकी आइडेंटिटी मैं रिवील कर सकती हूँ, others were not. तो जो comfortable नहीं थे, I've clearly changed their names. Since your book is based on the poetry and art and other things,
इन अमिड द कन्फ्लिक्ट, तो उसमें कितनी झलक दिखती है कन्फ्लिक्ट के, एंड आपको क्या लगा महसूस करके जब यहाँ की पोइट्री या आर्ट एंड पेंटिंग्स या बाकी चीज़ें आपने देखी? सो यहाँ पर मैंने म्यूजिशियन से बात करी, पोएट से करी, पेंटर से अभी तक मेरी बात नहीं हो सकी। पेंटर से आई टॉक टू देम इन अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान में मेरे फीमेल पेंटर से बात हुई थी। यहाँ पर वो जो कुछ पोइट्री कुछ कुछ म्यूजिशियंस ने मुझे सुनाई, इनफैक्ट काफ़ी पोइट्री जो यहाँ की हालात है, यहाँ की सिचुएशन है, उसको डिपिक्ट करती है, विच आई सॉ it's very very evident from, and once you read in the book you would know that. मैम आपने अभी बोला मैं क्राल भी, मैं डाउनटाउन भी, मैं हवा कदर भी, तो आप यहाँ के लोगों से तो क्या लगा आपको, यहाँ के लोग चाहते क्या? See, okay, देखिए, that is not really the scope of my book. I mean, I just want to make it clear, because मैंने पहले ही बोला था कि it's not a political book. I'm focusing on the human aspect of it. पर अगर आप ये क्वेश्चन जैसे आपने पूछा है कि यहाँ के लोग चाहते क्या है, मिले यहाँ के लोगों से इसके बारे में? नहीं चाहने से मतलब आप क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकली? नहीं पॉलिटिकली नहीं, आप यहाँ आपने कॉन्फ्लिक्ट किया। हाँ, नहीं आप मेरा एक आई वांट टू आस्क कि आप पूछ रहे हैं इन द पॉलिटिकल सेंस या किस तरीके से? पॉलिटिकल सेंस के हिसाब से या आपने यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट? ओके, सी मैंने वेरी फ्रैंकली एक यूनानिमस व्यू नहीं देखा है, ओके, विच वी ऑफन रीड इन द न्यूज़पेपर्स प्रोबेबली। अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि यहाँ पर ये डीमिलिटराइज्ड होना चाहिए, मिलिटराइजेशन इज़ द मेजर प्रॉब्लम। अ लॉट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स आई मेट सेड कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, बट माइनॉरिटीज़ से जिससे भी मैं मिली हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी रहते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं, हबा कदल एरिया में और भी पार्ट्स ऑफ द वैली में काफ़ी लोग रहते हैं हु हैड नेवर लेफ्ट। मोस्ट ऑफ दोज से कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, वी डू नॉट वांट इंडिपेंडेंस, बट उन्होंने मुझे बोला कि हमें जो मिलिटराइजेशन है उससे काफ़ी परेशान है। This everyday killings, encounters, because of the bunkers or the security situation, वो चाहे कोई भी हो, whether it is Kashmiri Muslim, whether it is Kashmiri Pandit, or whether it's a Kashmiri Sikh, और बाकी जो minority जो है पंजाबी community, वो सभी को affect करती है। यहाँ एक बार बुक डिस्प्ले कर दिया, 2-3 पेज खोलो। Okay. So this. Back. Front again. हम यहाँ से